Assalamu alaikum everyone. First of all, a warm welcome to you guys in our webinar on image processing using MATLAB. I hope you guys are doing good and safe at your houses. Before going forward, let's have a brief introduction of our speaker of today's event. Today we have Ma'am Sidra Naeem. She did her computer engineering from UET Texla and her master's from EME College in 2015. Welcome, ma'am, to our webinar. Ma'am, ma'am, you can hear me? Yes, Assalamu alaikum. Thank you so much for my brief introduction, Fazil. I think I should share my slides right now. Okay. Okay, ma'am. Okay. Can you see the slides? Ma'am, it's loading. Okay. Okay, ma'am. It's visible now. Okay. I think I should start now. Yes, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Thank you so much for my introduction. Today the topic of webinar is image processing applications using MATLAB. I think you are some participants are from 6th semester and some from 8th semester. So some have brief introduction about MATLAB as you have done some labs in MATLAB like signal processing, image processing. Here is the sequence of the presentation. The first is brief history, then 2 W's of MATLAB. I'll explain what is basically 2W. Environment and structure of MATLAB, toolboxes of MATLAB, its applications, or then image processing. Applications of image processing, the main applications of image processing is basically medical, agriculture, forensic, dentistry, security. And in the end, we have some question answer session. This is basically the history of MATLAB. In 1970, this professor that is known as Cleve Moller, a CS professor, University of New Mexico, proposed MATLAB, which is basically known as matrix laboratory. As its names indicate, matrix laboratory, it means this MATLAB purely works on matrices or vector. Vector is basically a 1D thing, that is basically a row or a column, and a matrix is basically a 2D thing which includes basically rows and columns. So the MATLAB basically provides interactive environment. Interactive means slightly easy to use, user friendly environment, easy input output operation on whole vector or matrix. Means you can process a whole vector on a matrix at once. Now the 2 W's of MATLAB. What is basically a 2 W of MATLAB? The first W is basically why MATLAB, why we are using MATLAB. Like we have other languages, Python, C, Java, C hash, and many other languages. Why we emphasis on MATLAB? And the second is what is MATLAB basically? मैट्रिक्स लेबोरेटरी मीन्स, इससे पहले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स लेबोरेटरी का, वो स्लाइट इंट्रोडक्शन था. अब मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स लेबोरेटरी होती क्या है. सबसे पहले हम कर लेते हैं वाई मैटलैब. Let's suppose we have an assignment. We have total 87 students in a class and we have 10 times of assignment, like, and I will randomly pick 20 students work. Means 87 students है, ठीक है, और हर स्टूडेंट के हमारे पास एक असाइनमेंट की 10 कॉपीज है और 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल. अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नेवर बी सिलेक्टेड. लाइक अगर एक स्टूडेंट है ए, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा. अब अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें स्टेटमेंट का, तो वो इस तरह से होगा कुछ 1 - 87 - 20 डिवाइडेड बाई 87 दिस. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका. अब अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. या आप कैलकुलेट करेंगे बाय हैंड, या आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, या आप लैंग्वेजेस में जाएंगे. अगर तो सबसे बेसिक लैंग्वेज जो हमें पढ़ाई जाती है वो सी या C++ है. इज इट? अच्छा, वाई नॉट मैटलैब. अगर हमारे पास मैट सी हम लिखते हैं तो सी का इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनेगा. एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसमें आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डाटा टाइप के साथ, वो एक्सप्रेशन लिखेंगे और प्रिंट एफ कर देंगे. ये 4-5 लाइंस तो हैं आपकी सी की. ठीक है, इससे पहले आपने थोड़ी सी ऊपर डायरेक्टरीज ऐड करनी होंगी. अच्छा, अब अगर मैं ये ज्यूम करूं कि मेरे पास सिर्फ लाइन नंबर 3 हो, लाइक ये जो लाइन बोल्ड हुई हुई है,
अगर हम इस सिर्फ स्लाइड नंबर 3 को ही फोकस करें तो क्या होगा मैटलैब। अब मैटलैब ना आपको ये फिजिबिलिटी देता है कि आप बाकी पूरा कोड ना लिखें, बल्कि आप खाली ये जो लाइन नंबर 3 है m इज इक्वल्स टू दिस, इसको लिखें। आपको आइडिया होगा कि सी लैंग्वेजेस में जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले आप लोगों ने उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करनी होती है। मैटलैब में डाटा टाइप्स का कोई चक्कर नहीं है। आपने डायरेक्टली जब एक स्टेटमेंट लिख दी है तो मैटलैब उसकी खुद डाटा टाइप डिफाइन कर देता है, और इन द एंड इवेंचुअली ये जो m इज इक्वल्स टू इस पूरी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है उसको एक मैट्रिक्स बना देगा। मीन्स हर चीज आपने सिग्नल पर काम किया, इमेज पर काम किया, कोई सिस्टम डिजाइन किया है, उसको इन द एंड मैटलैब ने मैट्रिक्स बना दिया। दिस इज बेसिकली वाई वी आर यूजिंग मैटलैब। इजी टू यूज, आपने कोई डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखी m इज इक्वल्स टू दिस दिस, उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज मैटलैब। अच्छा, मैटलैब मीन्स मैट्रिक्स लेबोरेटरी। अब ये थोड़े से ना मैटलैब के फीचर्स हैं कि मैटलैब है क्या। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जिससे आपके पास एक बेसिक लो लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज है, और इस तरह से मैटलैब हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बेसिकली जावा बेस्ड है। ठीक है। स्पेशलाइज्ड टूल बॉक्सेस, टूल बॉक्सेस मींस मैटलैब ना आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या डिफरेंट डोमेन्स को कवर करता है। इसमें खाली एक डोमेन कवर नहीं होती, हर डोमेन का एक अलग टूल बॉक्स है। अगर मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ इमेज प्रोसेसिंग की, तो इमेज प्रोसेसिंग का एक पूरा टूल बॉक्स है। अब अगर हम सिग्नल प्रोसेसिंग की काम करेंगे, सिग्नल प्रोसेसिंग का एक पूरा टूल बॉक्स होगा। सेम इज द केस विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स मींस आपने सिंपल प्रिसाइज प्रोग्राम लिखना है, बहुत लंबी चौड़ी हेडर फाइल्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन है। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन मींस मैट्रिक्स पे आप हर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स के बीच में से वैल्यूज पिक कर सकते हैं, फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं, डाटा को प्लॉट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गो डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमुलिंक आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने की। देन लोड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अच्छा, अब ये लोड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये थोड़ी सी ना की पॉइंट है आपके पास इमेज प्रोसेसिंग में। इमेज प्रोसेसिंग में ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो इमेजेस मैटलैब के अंदर हैं हम उन्हीं पर काम करें। सम टाइम मेरे पास कोई एक रैंडम इमेज आता है कहीं से भी, मैं उस पर भी काम कर सकती हूँ। इसका मतलब है कोई और सोर्स पे इमेज पड़ा हुआ है, मैंने उस इमेज को प्रोसेस करना है, तो मैटलैब मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डेटाबेसेस से इमेजेस लूँ और उनको प्रोसेस करूँ। प्रोवाइड्स मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट। आप लोगों में से कुछ ने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा हो। मल्टी थ्रेडिंग ये होता है कि आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है या एक सिस्टम चल रहा है और उसके आप डिफरेंट पार्ट्स बना लें, उन पार्ट्स को आप कहते हैं थ्रेड्स। हर थ्रेड को आप सेपरेटली प्रोसेस करें। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफिक सिस्टम है, दैट इज बेसिकली सिमुलिंक। सिमुलिंक थोड़ा सा आप लोगों को मैं आइडिया दे देती हूँ कि हम लोग ना डिज़ाइन करते हैं शेप्स को। 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन जितनी भी होती है वो सिमुलिंक में होती है। आप अपने कंट्रोल के सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारे जो है ना बेसिकली फीचर्स हैं मैटलैब के। ऑल्दो हर लैंग्वेज में समहाउ कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन प्योरली अगर हम मैटलैब की बात करें तो मैटलैब वाइडली यूज लैंग्वेज है। अब एलिमेंट्स क्या है बेसिकली, कमांड विंडो है, फिर उसके बाद जो कमांड विंडो है उसकी हिस्ट्री है, वर्क स्पेस है और करंट डायरेक्टरी है। मैं आपको इससे एक्सप्लेन करती हूँ, स्लाइड से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। कमांड विंडो जहाँ रेड सेंटर में लिखा आ रहा है, ये बेसिकली मेन विंडो होती है जहाँ पर आप जो चीज़ लिखते हैं वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती है। कमांड विंडो ना आपके पास लाइन टू लाइन ऑपरेशन है। आपने एक लाइन लिखी, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस होने से ही आपके पास कंपाइल होकर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। कमांड विंडो में ये नहीं होगा कि आप पहले कंपाइल के बटन पर जाएं या रन के बटन पर फिर प्रेस करें, नहीं। आपने लिखा है ना मैट्रिक्स जैसे b इज इक्वल्स टू 3 और 4, एंटर प्रेस की है तो उसने उस एंटर के प्रेस करने के साथ ही आपको रिजल्ट दे दिया। ठीक है। अब कमांड विंडो के साथ ही ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पर बटन बने आ रहे हैं दो, एक वर्क स्पेस और करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी बेसिकली वो चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका मैटलैब कहाँ पर सेव है, किस डायरेक्टरी में है, सी ड्राइव है या डी ड्राइव में है। और कमांड हिस्ट्री वो चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी कमांड यूज़ की है। अब जिस तरह मैंने रिसेंटली यूज़ की है b इज इक्वल्स टू 3 4, कमांड विंडो में यूज़ की है मैंने, तो साथ ही कमांड हिस्ट्री में भी लिखी आ रही है ये। ठीक है। और इससे ऊपर मेरे पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस बेसिकली जितने भी वेरिएबल्स आपने या मैट्रिसेस वेक्टर्स बनाए होते हैं उन सबको स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा,
स्ट्रक्चर ऑफ मैटलैब। अब मैटलैब का स्ट्रक्चर किस तरह से है? सबसे पहली चीज, ये जो कमांड विंडो में मैंने चीज लिखी थी ना, ये बेसिकली मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल है। आपके पास ना एक एम फाइल बनती है, जिस तरह सी में एक डॉट सीपीपी की फाइल बन जाती है, जावा में डॉट जावा की फाइल बन जाती होगी। इस तरह से ना इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल होती है, एक फंक्शन फाइल होती है। स्क्रिप्ट फाइल में ना आप कोई इनपुट आउटपुट आर्गुमेंट नहीं लिखते, आप डायरेक्टली लाइन लिख देते हैं, जिस तरह से ये लिखी हुई है कमांड विंडो में, कि आपने कमांड विंडो में b = 3 4 लिखा, एंटर प्रेस किया, उसने रिजल्ट दे दिया। इसमें इस लाइन लिखने में कोई इनपुट आउटपुट नहीं ली हुई, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन फाइल। फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम वाइडली यूज कर रहे होते हैं। अब सम टाइम मेरे पास एक ऐसा कोड या एक और फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा कोड जिसको आप बाहर के वेरिएबल से ऑपरेट कर सकें आर्गुमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब जो चीज़ आप कमांड विंडो में लिखते हैं, इधर लिखते हैं सेंटर में, उसमें कोई भी इनपुट आउटपुट आर्गुमेंट नहीं होता, ना उसमें फंक्शन बन सकता है। जब आपने फंक्शन बनाना है तो फिर आप एक एम फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। अब एम फाइल क्रिएट करते हैं तो किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? .m से, ठीक है। अच्छा, .mat की फाइल जो होती है वो कर रही होती है एक पूरे के पूरे मैट्रिक्स को सेव कर रही होती है, इमेजेस को, सिग्नल्स को सेव करती है। फिर .mat की फाइल जब आप नेक्स्ट टाइम लोड करते हैं तो वो उन पूरे इमेजेस को जो उस डेटाबेस में सेव हुए होते हैं सबको लोड कर देता है, ठीक। अच्छा, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया था मैटलैब की स्पेशलाइज्ड टूल बॉक्सेस है। इसे पीछे कौन कौन से, सबसे पहले देखिए आप, जैसा ऑप्टिमाइजेशन का टूल बॉक्स है, सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स है, फिल्टर डिजाइन का है, कंट्रोल सिस्टम का है, डाटा एक्विजिशन का है। ये सारे टूल बॉक्स है, ये कुछ है, ये 4 सिर्फ टूल बॉक्सेस है, इस तरह से बहुत सारे टूल बॉक्सेस अवेलेबल है मैटलैब। अब मैटलैब की एप्लीकेशन अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में देखें प्योरली, डिस्पाइट के कौन सी स्पेशलाइज है, सिर्फ इंजीनियरिंग में देखें तो कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, क्रिप्टोग्राफी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फॉरेंसिक है, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग है। ये सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आज जो हमारा सेमिनार का है बेसिकली वो इन सारी एप्लीकेशंस में से हमने जिसको पिक किया है वो इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब इमेज प्रोसेसिंग है क्या? आपको इससे पहले मैटलैब का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि मैटलैब क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसका वर्क स्पेस क्या, एनवायरनमेंट क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इमेज प्रोसेसिंग का, उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस देख लेंगे, ठीक। इमेज प्रोसेसिंग क्या है? इमेज इज बेसिकली अ 2D मैट्रिक्स, एक कोई भी मैट्रिक्स जिसको आप 2D फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ डेटा होता है। अब इमेज में ना हर वैल्यू को हम कहते हैं पिक्सल, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा पिक्सल का कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना इमेज का वो एक पिक्सल है। इमेज प्रोसेसिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? इसके बेसिकली 2 मेन रीजंस हैं। विजुअल अपीयरेंस ठीक हो जाए इमेजेस की, मुझे सही नजर आई। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास एक इमेज है और वो इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर है, उसमें मैं इंफॉर्मेशन मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी? मैं उस इमेज को प्रोसेस करूँगी। दिस इज़ बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग। और मैं उसको इस तरह से प्रोसेस करूँगी कि मेरी विजुअलाइजेशन आसान हो जाए, मुझे सही नजर आए जो इन्फॉर्मेशन उसमें लेनी है। सेकेंड, प्रिपेयरिंग इमेजेस फॉर मेजरमेंट ऑफ द फीचर्स एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स। इसका क्या मतलब है? अच्छा, लेट सपोज मैंने इमेज को डी ब्लर भी कर लिया, उसमें से इन्फॉर्मेशन भी मैंने सही कर ली, सारी जो नॉइस थी वो रिमूव कर ली। अब नेक्स्ट, नॉइस रिमूव करने के बाद जो मेरा इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन है इमेज में से वो क्या है? लेट सपोज एक ग्लास है, उस इमेज में से मैंने इस ग्लास को पिक करना है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेन जो मेरा फोकस है इमेज में वो ग्लास है, मैंने उसको विजुलाइज करना है, वो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट मैं सेव करूंगी अपने पास और उसको फर्दर प्रोसेस करूंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से होगी? लेट सपोज वो इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को आगे भेजनी है कि इस ग्लास की ये फीचर है, इसकी ये डायमेंशन है, इसकी ये लेंथ है, ये कलर है, ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब इमेज को आपने पहले नॉइस से रिमूव भी किया और फिर उसके फीचर्स भी गेट किए। इमेज प्रोसेसिंग की टाइप क्या है? 3 मेन कैटेगरीज होती है इमेज प्रोसेसिंग की। इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज टू इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन टू इमेज। वन बाय वन हम हर एक को देखते हैं। सबसे पहले इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स नेम इंडिकेट कर रहा है इनपुट भी इमेज है और आउटपुट भी इमेज है, ठीक है। मतलब मैंने इनपुट पर इमेज दिया तो मुझे आउटपुट पर भी इमेज ही मिलना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। अब ये इमेज एक बना हुआ है, चेस्ट का इमेज है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एक मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, उसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, उसमें जो बोन्स हैं चेस्ट की वो क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये मैंने इस इमेज को प्रोसेस करना है और इस तरह से प्रोसेस करना है कि मुझे इन द एंड जो ओवरडन इमेज है उसमें आप देखें तो ज़्यादा सही नज़र आ रही हैं चीज़ें। अब ये चीज़ कैसे होगी? ये इन्हांसमेंट से,
इन्हांसमेंट क्या होता है? बेसिकली इमेज को इन्हांस कर रहा होता है, इमेज की पिक्चर को बेहतर कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड, आप इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं, डी ब्लरिंग कर सकते हैं, नॉइज को रिमूव कर सकते हैं, लाइंस को रिमूव कर सकते हैं, और ज्योमेट्री मीन्स स्केलिंग और जूमिंग। आपके पास एक इमेज है, एक छोटा सा इमेज है, मैं उसको कहती हूँ कि आप स्केल करके दिखाएं, इमेज को बड़ा करके दिखाएं। तो दिस इज बेसिकली इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के इनपुट पे आपने इमेज ली है, बेशक छोटा इमेज है, साइज इसका 20-20 का है, 20 रोज 20 कॉलम्स है, और मैं कह रही हूँ आप उसको 40-40 का बना दें। अब क्या है, इन द एंड इमेज ही बनेगा ना, ठीक है, लेकिन साइज कितना हो जाएगा? 40 रोज और 40 कॉलम्स का, ठीक है। दिस इज बेसिकली इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इमेज टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या है, देखें, इनपुट पर एक इमेज है 51 क्रॉस 51 मीन्स 51 रोज 51 कॉलम्स, और इन द एंड आप आखिर में देखिए फीचर एक्सट्रैक्शन, ये फिगर देख लें आप लोग, फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन के बाद मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, 0 और 1। इसका मतलब है इनपुट क्या था? इमेज था, और आउटपुट पर मेरे पास अब सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 और 1। इंफॉर्मेशन आ रही है, इमेज तो नहीं आ रहा। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ यूज होती है? सबसे पहली चीज, इमेज स्टैटिस्टिक्स कहाँ किस तरह से यूज होती है? हिस्टोग्राम कैलकुलेट करें। इनपुट पर आपने इमेज दिया, आउटपुट पे आपने उसने आपको हिस्टोग्राम दे दिया। हिस्टोग्राम क्या होता है? बेसिकली एक चार्ट होता है, पाई चार्ट, जिसमें आप काउंट करते हैं पिक्सल की वैल्यूज के किस पिक्सल पर कितने ग्रे लेवल अकर हो रहे थे, एक ग्राफ बन जाता है। मतलब इमेज दिया तो मुझे आउटपुट पे ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ एक इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, इमेज तो नहीं मिला। सेकेंड, इमेज कंप्रेशन, इमेज था मेरे पास, जैसा ये 51 क्रॉस 51, मेरे पास इन द एंड इमेज कंप्रेस होकर आ गया। इमेज एनालिसिस, सेगमेंटेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस सिस्टम, कैड। अच्छा जी, ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है इमेज प्रोसेसिंग में। है क्या ये? एक इमेज है मेरे पास, लेट सपोज कैंसर का है, स्किन कैंसर का, ठीक है, और लेट सपोज मैं एक फिजिशियन हूँ, ठीक, मेरे पास एक इमेज है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1000 की डायरेक्टरी में से ना हर इमेज को प्रोसेस करूँ। मैं क्या करूँगी, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहूँगी, कैड सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस सिस्टम, जिसमें मेरी जगह मेरा काम जो है ना वो एक रोबोट कर रहा हो, ठीक। अब वो रोबोट काम किस तरह से करेगा? होगा क्या कि लेट सपोज आपके पास एक इमेज आया है, ठीक है, अब रोबोट के पास एक इमेज आया, अब रोबोट उसको विजुलाइज नहीं कर सकता, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसने उसी से काम करना है। वो क्या करेगा, उस रोबोट जो इमेज है, इनपुट इमेज, उसको मैच करेगा अपने डाटा सेट से, जिसमें सेगमेंटेशन भी होगी, फीचर एक्सट्रैक्शन होगी, फीचर से वो मैच करेगा, और इन द एंड वो मुझे ये बता देगा कि ये 0 है या 1 है। 0 मीन्स इसमें कैंसर नहीं है इस इमेज में, 1 मीन्स इसमें कैंसर है। अब काम थोड़ा मेरा डिवाइड हो गया है, फिजिशियन को काम कम करना पड़ेगा, सिस्टम ने जगह ले लिया ना, एक रोबोट ने, एक कैड सिस्टम ने जगह ले लिया, ठीक है। इसका मतलब है 0 और 1 मेरे पास आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है या नहीं है। दिस इज बेसिकली अ कैड सिस्टम। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये जो कैड सिस्टम है ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक दिखाती हूँ, स्किन कैंसर पे मैंने जो काम किया हुआ है मैं आपको वो दिखाऊंगी आगे। इंफॉर्मेशन टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये लास्ट टाइप है। इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे, आउटपुट पर इमेज आ जाएगा। किस तरह से? बिल्कुल ऑपोजिट है कंप्रेशन का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज स्लाइसिस। लेट सपोज मेरे पास एक MRI इमेज है, ठीक है, और MRI इमेज की ना स्लाइसिस बनी हुई है, डिफरेंट स्लाइसिस मीन्स इमेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन अलग अलग है उसकी, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर मैंने एक इमेज बनाना है। ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में भी यूज होता है, जिसमें हिस्टोग्राम होता है आपके पास और उस हिस्टोग्राम से आपने एक इमेज बनाना होता है, सही है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब। इससे पहले जो मैंने आपको एप्लीकेशन की स्लाइड दिखाई थी वो थी मैटलैब की एप्लीकेशन प्योरली इंजीनियरिंग में। अब ये है इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है? मेडिकल इमेजिंग में, एग्रीकल्चर में, फॉरेंसिक, सिक्योरिटी, डेंटिस्ट्री। इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स है किस तरह से जो मैटलैब में यूज करते हैं? एक आपके पास एक ऐसा टूल बॉक्स है इमेज प्रोसेसिंग का जो कि आपको सेगमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन्हांसमेंट मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है, इमेज को बेहतर करना, नॉइज वाला रिमूव करना, नॉइज रिडक्शन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन छोटा बड़ा करना इमेज को, इमेज रजिस्ट्रेशन, यूनिक डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। अच्छा, इसमें आप ना 2D 3D इमेजेस को भी कर सकते हैं और आर्बिट्रेरीली लार्ज इमेजेस को। इसका मतलब ये पूरे डाटा सेट को आप एक ही गो में प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक डाटा सेट में 200 इमेजेस हैं
तो आपका मैटलैब का एक कोड उन 200 इमेजेस को इकट्ठे प्रोसेस कर सकता है और वो एक एल्गो उन 200 इमेजेस पर अप्लाई कर सकता है। अब ये थोड़ी सी ना मैटलैब की बेसिक कमांड्स हैं इमेज प्रोसेसिंग में यूज होती हैं। लेट्स सपोज एक इमेज रीड करना है तो आपने कोई कुछ नहीं लिखना है इससे पहले बड़ा सा कोड, डायरेक्टली कमांड लिखनी है, दैट इज बेसिकली आई एम रीड। उसमें इमेज का नाम देंगे, जिस इमेज को रीड करना है वो इमेज रीड करके दे देगा। उस इमेज को डिस्प्ले कराना है तो आई एम शो, राइट कराना है तो आई एम राइट। अब ये जो कमांड्स है ना, आई एम राइट, आई एम रीड, ये मैटलैब की बिल्ट इन है। इसका मतलब है मैटलैब आपको इतनी ईज प्रोवाइड करता है कि आपके पास बिल्ट इन कमांड्स हैं, आपने सिर्फ उनको यूज करना है अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अपनी कमांड्स अपने इमेजेस पास करने हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन इमेज किस तरह से होगा? अच्छा, साइज गेट किया है मैंने ए का, ए क्या है मेरे पास एक इमेज है, उससे मुझे दे दी आर और सी। आर क्या है? रोज, सी क्या है? कॉलम। क्यों? इमेज एक 2D चीज है। एक्सेसिंग द पिक्सल डेटा, पिक्सल का डाटा किस तरह से गेट करते हैं? अब देखिए एक इमेज है, लेट्स सपोज 50 रोज और 50 कॉलम्स हैं, कितने पिक्सल्स होंगे उसके अंदर? और मैंने उसमें से कोई एक पिक्सल गेट करना है। लेट्स सपोज वो पिक्सल गेट करना है जो लोकेशन जिसकी रो 2 है और कॉलम क्या है 15। तो मैं जब ये कमांड लिखूंगी a 2,15, तो जो मैटलैब का कंपाइलर है मुझे ऑटोमेटिकली वो वाला ही पिक्सल उठा कर देगा उस पूरे मैट्रिक्स में जो जो उस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप इतना डीप प्रोसेस कर सकते हैं कि आप पिक्सल की वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं। अब मेडिकल इमेजिंग की मोडालिटीज क्या हैं? मेडिकल इमेजिंग कहाँ यूज होता है? मींस मेडिकल इमेजिंग का मतलब ये है कि मेडिकल की कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ इमेजेस आते हैं? एक्सरेज है, डर्मेटोलॉजी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, फंडस इमेजेस हैं। अब जो दो मेन कैटेगरीज हैं, इन सारों पर बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। जो हमारी आज वेबिनार है उसमें मैं ये इन दो कैटेगरीज पे आपको बताऊंगी काम किस तरह से होता है, एक्सरेज और डर्मेटोलॉजी। अब सबसे पहले एक्सरे, लेट्स सपोज आपके पास ये एक चेस्ट का एक्सरे इमेज है, ठीक है, और मैंने इसको प्रोसेस करना है ओरिजिनल को, ओरिजिनल इमेज इस तरह से है। इसमें मेरे पास रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डेफिनेटली मेरे पास वो चेस्ट की बोन्स हैं जिसको मैंने प्रोसेस करना है। अब देखिए ओरिजिनल इमेज मेरे पास क्या था, और मैंने जब इस पे सेगमेंटेशन अप्लाई की है, जो मैटलैब में बिल्ट इन सेगमेंटेशन है, तो मेरे पास किस तरह से आ गया है कि उसने सिर्फ चेस्ट को प्रोसेस किया हुआ है, जो ब्लैक रीजन है चेस्ट का, बाकी सबको वाइट कर दिया, बाकी मेरा उसका कोई काम नहीं है। दिस इज बेसिकली सेगमेंटेशन, कि आपने एक इमेज गेट की है और उस इमेज में से आपको सिर्फ जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपने वो इंफॉर्मेशन गेट की है, और वो क्या है? वो इस एक्सरे इमेज है। अब देखें आपके पास फिजिशियन क्या कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स, ये जो एक्सरे इमेजेस हैं वो एक मशीन में लगाते हैं और उसमें विजुलाइज करते हैं, उसमें से देख रहे होते हैं कि कौन सी बोन फ्रैक्चर है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है। अब अगर यही वाला काम उस फिजिशियन की जगह मेरा सिस्टम करेगा तो वो सिस्टम क्या करेगा? मैं पहले सिस्टम को ट्रेन कर दूंगी, एक एल्गो बनाऊंगी पूरा कि इन सिनेरियो में डिजीज है, इन सिनेरियो में डिजीज नहीं है। मैं ट्रेन करूंगी अपने सिस्टम को, ठीक है, कुछ इमेजेस पर, फिर टेस्ट करूंगी। अब टेस्ट क्या होगा? मेरे पास जब कोई पेशेंट आएगा तो वो अपना एक इमेज लेकर आएगा एक्सरे वाला, तो मैं वो टेस्ट करूंगी उस इमेज से। इसका मतलब है अब जो डायरेक्टरी में इससे पहले हुए हुए होंगे ट्रेन इमेजेस, उनको मैं अब टेस्ट करूंगी किससे? जो नया वाला इमेज आया। अब मेरे पास जो सिस्टम होगा ना इन एंड, वो मुझे बता देगा कि ये जो आपका टेस्ट इमेज है इसमें ये एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब ये एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है इसी चीज का, ये जो मैंने गेट की है रीजन ऑफ एक्सट्रैक्शन इमेज का। ये जो कितनी लाइंस होंगी? हार्डली 20 होंगी, जो 20 या 15 लाइंस का कोड है। एक 15 लाइंस के कोड से अगर आप एक लंग का रीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें से आप एबनॉर्मेलिटीज गेट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप हर एक इमेज को इंडिविजुअल प्रोसेस करें। ये एक दफ़ा कोड अगर मैं लिख लूँ और इस एक कोड के थ्रू मैं अपने सिस्टम को ट्रेन कर दूँ, तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास जितने भी टेस्ट इमेजेस आएंगे वो इस कोड के थ्रू गेट होंगे, और उसमें इंफॉर्मेशन वो देखेगा कि इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इमेज प्रोसेसिंग की एक मोडालिटी देख ली, एक्सरे। नेक्स्ट है हमारे पास डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो आपके पास स्किन से रिलेट करती है, ठीक है। और स्किन की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? डर्मोस्कोपी। इमेजिंग टेक्निक
मीन्स अगर मैंने स्किन के इमेजेस गेट करने हैं तो उस टेक्निक को मैं कहूँगी डर्मोस्कोपी। Dermoscopy is an imaging technique and this is basically a non-invasive procedure. Non-invasive procedure क्या होता है? जिसमें कोई कट ना लगे, कोई पेन ना चुभे, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको पेन ना हो। सॉरी, मीन्स क्या है, अब जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इमेजेस किस तरह से गेट करते हैं स्किन के, वो क्या करते हैं, एक डर्मोस्कोपिक जेल होती है, वो स्किन पर लगाते हैं और उसके बाद डर्मेटोस्कोप है उनके पास, जिससे आपके पास माइक्रोस्कोप टाइप एक चीज होती है, उससे वो उसका इमेज गेट करते हैं। वो एक अच्छी रेजोल्यूशन पर आपको एक स्किन का इमेज दे देता है, ठीक है। और आप इतने स्किन के टिश्यूज को विजुलाइज कर सकते हैं जो आप अपनी सिंपल आई से नहीं देख सकते। अब देखिए मेरे पास एक स्किन का इमेज है, स्किन कैंसर का, ये एक इमेज है, स्किन कैंसर की डिटेक्शन है। अब ये भी सारी मैंने मैटलैब पर की हुई है। किस तरह से है, मेरे पास ये ना एक स्किन कैंसर का एक इमेज है, ठीक है। अब कैंसर का क्या है, लेट सपोज एक स्किन कैंसर की बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, एक मोल है, लेट सपोज मोल मीन्स एक छोटा सा तिल, वो ना स्लाइटली ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, सम टाइम वो कैंसर बनता है और सम टाइम वो कैंसरियस नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ किस तरह से आइडेंटिफाई होगी कि ये कैंसरियस सेल है या नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने पहले उस इमेज को गेट किया और उसमें डिटेल में देखा कि वो जो ग्रो कर रहा है रीजन वो किस तरह का है, उसके अंदर किस तरह के फीचर है, उसका टेक्सचर किस तरह से है, वो एक ही शेप में ग्रो कर रहा है या डिफरेंट शेप्स में ग्रो कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मैं एक इमेज को इस लेवल पर विजुलाइज कर रही हूँ कि मैंने उसके फीचर्स को, उसके टेक्सचर्स को भी देखना है। अब है क्या मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, ठीक है, और हर दफा हर मैं 1 महीने बाद एक इमेज गेट कर रही हूँ एक ही पेशेंट का। अभी मैं एक पेशेंट की बात कर रही हूँ, तो बजाय इसके कि हर दफा फिजिशियन देखता रहे, उस पर जेल लगाए और वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास फिजिशियन एक इमेज ले और उसको अपने सिस्टम में डाल दे, सिस्टम उस इमेज को प्रोसेस करे, उसको ट्रेन करे और फिर सिस्टम मुझे इन द एंड एक मैसेज दे दे कि नहीं ये कैंसरियस इमेज नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है ना, बजाय इसके कि हर दफा एक इमेज पर फिजिशियन प्रोसेस करे, एल्गो रन करे। अब ये दो मेन कैटेगरीज हैं, एक सेगमेंटेशन और फीचर एक्सट्रैक्शन। इससे पहले जो मैंने आपको सेगमेंटेशन ये वाली दिखाई है, ये कौन सी सेगमेंटेशन है, ब्लैक और व्हाइट। ये कौन सी सेगमेंटेशन हुई हुई है, जो ब्लू ब्लू लाइंस हैं, दिस इज बेसिकली कलर्ड सेगमेंटेशन। इसका मतलब ये कि मैटलैब में आप खाली ब्लैक और व्हाइट सेगमेंटेशन ही कर सकते हैं, आप कलर्ड सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। ये इस पूरे का कोड है। अब है किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्री प्रोसेसिंग की, सबसे पहले मैंने एक इमेज पे प्री प्रोसेसिंग की, मींस उसमें से नॉइज को रिमूव किया। प्री प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है, ये एक ब्लर्ड इमेज था मैं कैमरामैन का, उसको मैंने डी ब्लर किया है। अब ज्यादा बेहतर है ये पहले वाला, डी ब्लर इमेज ज्यादा बेहतर है, बंदा भी नजर आ रहा है, उसका कैमरा भी, और पीछे बैकग्राउंड में वो जो एक मॉस सी बनी हुई है जो भी है वो भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट इमेज देखिए, कॉइन्स पड़े हुए हैं और थोड़े से उसमें डॉट्स हैं, एक नॉइस है, इसको मैंने रिमूव किया है तो ज्यादा क्लियर इमेज हो गया है। दिस इज बेसिकली प्री प्रोसेसिंग, कि इमेज को प्रोसेस करने से पहले इसमें से नॉइस रिमूव करें। नॉइस कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये भी बेसिक प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है मैटलैब में। फिल में से, फिल आउटलाइट से डाटा को स्मूथ कर सकते हैं, रीस्केल कर सकते हैं, ये सारी बिल्ट इन है। आपने इनमें से कोई एक पकड़ के इनमें यूज करनी है, सिनेरियो पर आप देखेंगे कि कौन सी फिट होती है। अच्छा नेक्स्ट फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग क्या है, फिल्टरिंग और टाइम डोमेन प्रोसेसिंग। फिल्टरिंग ये है कि मेरे पास एक इमेज है, मैंने उसको डिफरेंट फिल्टर से गुजारा है और उसके फिल्टर से गुजारने के बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो खाली सिर्फ, लेट सपोज मैं यही ले लेती हूँ, ये इमेज ले लेते हैं कैमरामैन वाले का। मैं फिल्टरिंग करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो पीछे बैकग्राउंड में चीजें ना वो सारी वो खत्म हो जाए, खाली एक सिर्फ कैमरामैन, एक बंदा रह जाए और उसका कैमरा रह जाए बस। अब इसका मतलब ये है कि मैं कोई एक फिल्टर डिजाइन करूंगी और उसको इस इमेज में सिर्फ गुजारूंगी ताकि मेरे पास आउटपुट पर जो इमेज आए वो खाली एक प्लेन इमेज हो जिसमें बंदा और उसका कैमरा हो। अब ये सारी मैटलैब की बिल्ट इन चीजें हैं, आपने सिर्फ सिनेरियो देखकर इनको यूज करना है। सेगमेंटेशन, अब देखें ये एक ओरिजिनल इमेज है, इसकी दो तरह से सेगमेंटेशन हो सकती है, बाइनरी, बाइनरी मीन 0 1, या कलर्ड, दोनों फेस हो सकती हैं। आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है आपको कौन सी यूज करनी है।
ये सारी सेगमेंटेशन की टेक्निक्स हैं जो मैटलैब में बिल्ट इन है, जो मैटलैब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्रे थ्रेश से लेकर सुपर पिक्सल 3 तक, जिसमें 2D और 3D सेगमेंटेशन मैटलैब प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटरशेड है, एक्टिव कंटूर है, ग्रेडियंट वेट है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पीस ऑफ कोड है रिफ्लेक्शन रिमूवल का इस सेगमेंटेशन का। अच्छा, अब सेगमेंटेशन मैंने कर ली, लेट्स सपोज ये आ गया मेरे पास, एक मिनट, ये ओरिजिनल इमेज था और मैंने इसे कलर्ड सेगमेंटेशन गेट कर ली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ठीक की है सेगमेंटेशन या नहीं? ये तो आपको देखने से नजर आ रहा है समहाउ ठीक है, सही है। मैटलैब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इवेल्युएट कर सकते हैं सेगमेंटेशन की एक्यूरेसी, कितना % आपकी एक्यूरेट है सेगमेंटेशन, किस तरह से, जे कार्ड से, डाई से एंड BF सोर्स से। ये जो 3 बेसिकली आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ये बता रहे होते हैं कि कितनी % एक्यूरेसी है। परसेंटेज मींस 80% एक्यूरेट इमेज है, 10% है, वो ये चीज बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ तक जो था वो मेडिकल इमेजिंग में था, मैटलैब का इंट्रोडक्शन, जिसमें एक्सरे इमेजेस को भी देखा हमने, स्किन कैंसर को देखा, स्किन कैंसर में इसकी सेगमेंटेशन को भी देखा कि किस तरह से सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैटलैब का रोल है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में कहाँ ज़रूरत है मैटलैब की और क्यों हम ज़रूरत है मैटलैब की? मतलब एग्रीकल्चर तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक बड़ी ट्रेडिशनल सी फील्ड है जिसमें फार्मर जो होता है वो अपनी फील्ड को मॉनिटर करता है और देख रहा होता है। नहीं, अब जो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास पूरी की पूरी जो कंपनीज हैं वो बेस्ड कर रही हैं एग्रीकल्चर पर, और वो एग्रीकल्चर में एम्बेड कर रही हैं टेक्नोलॉजीज। किस तरह से? एक बेसिकली टर्म यूज कर रहे हैं आजकल, फार्मर्स रिले ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बूस्ट प्रोडक्शन। अब इसमें 2-3 मेन चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये है कि आपने सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं, मशीन्स ऐसी बनानी है जो कि आपकी प्रोडक्शन को, आपकी फील्ड को बहुत अच्छा कर दे, बूस्ट कर दे। अब सबसे पहले एरियल इमेजरी, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती थी कि फार्मर होता था, वो पूरी की पूरी फील्ड को देखता था जाकर, उसको विजुलाइज करता था, फिर वो खुद स्प्रे कर रहा होता था हर कॉर्नर में जाकर। अब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेबर वर्क इसमें ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें ये कि फार्मर ने खुद विजिलेंट रहना है, हर एरिया को देखना है। अगर समटाइम एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी एक प्लांट पे थोड़ी सी आई है, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो विद इन वीक्स पूरी की पूरी फील्ड में फैल जाती हैं अगर उनको टाइमली स्प्रे ना किया जाए। तो होता क्या है कि इसमें ना फार्मर की बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फार्मर की मेहनत को थोड़ा सा कम कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा बर्डन कम हो, और सिस्टम्स ऐसे आ जाएं, ड्रोन्स ऐसे आए, मशीन्स ऐसी आएँ कि जो फार्म्स को ना मॉनिटर करती रहे, इमेजेस लेती रहें, और जहाँ कहीं उनको थोड़ा सा इमेज में कोई प्रॉब्लम नज़र आए वहाँ पर टाइमली स्प्रे हो जाए। अब ये एक आइडियल सिनेरियो है, आइडियल, ठीक है, एक ड्रोन हो जो कि जाए और उधर फौरन से स्प्रे करे ताकि पूरी फील्ड आपकी बच जाए, पूरी फील्ड में वो डिजीज ना स्प्रेड हो। ठीक है, अब ये थोड़ा आइडियल कंडीशन है। इसमें ऑल्दो आपके पास टेक्नोलॉजी मैटर करती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन गेट करनी है, जो ड्रोन ने इमेजेस लेनी है या वीडियो, हम अब इमेज की बात करते हैं, जो ड्रोन ने वीडियो लेनी है, सॉरी इमेज लेना है फील्ड का, वो अच्छा होना चाहिए, और हमारा एल्गो इतना स्ट्रांग होना चाहिए सिस्टम कि वो उस इमेज में से डिजीज को पकड़ सके। ऐसा हो कि एक नॉर्मल इमेज हो और एक इन्फेक्टेड इमेज हो, तो हमारा एल्गो देख सके कि ये नॉर्मल इमेज है या ये इन्फेक्टेड इमेज है। ठीक है, अब ये जो मैंने सारी आपको बताई है स्टोरी, उसका क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है टू वॉक एन एंटायर फील्ड एरिया इमेजिनरी कैन अचीव द टू द प्लांट डिटेल, प्लांट की इंफॉर्मेशन, एक सिंगल प्लांट की इंफॉर्मेशन भी आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मर नीड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। एक US बेस्ड कंपनी है इंटेलिन एयर, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी फील्ड को ना मॉनिटर करती है, किस तरह से वो एक एक प्लांट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस प्लांट की टेक्सचर को भी विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी। अब ये क्या है? एक हमारे पास लेट्स सपोज ये ड्रोन है, ठीक है, अब ड्रोन ने देखा एक एरिया में जाकर इमेजेस लिए, उसके बाद उसको टेस्ट किया, नहीं ठीक था,
ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। अगर स्प्रे करने की ज़रूरत है तो फिर ड्रोन के साथ जो एक एम्बेड बॉटल होगी स्प्रे वाली, वो उसको स्प्रे कर दे अफेक्टेड रीजन में। अब ये जो चीज़ है ना ड्रोन की, ये बेसिकली प्लांट का जो मेन टेक्सचर है ना, साइकोलॉजिकल कंडीशन जो कह रहे हैं प्लांट की, उसको भी विजुलाइज कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आप एक पूरे के पूरे एग्रीकल्चर की फील्ड में इमेजेस गेट करें अगर, और इन इमेजेस को प्रोसेस करें विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, जिसमें मैटलैब की कोई भी आप टेक्निक यूज़ करें, तो आप डिजीजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मेडिकल इमेजिंग में है, इमेज आ गया है ना, मतलब अब वो इमेज बेशक एक स्किन कैंसर का है, ये एक प्लांट के कैंसर का है, डिजीज है दोनों, ठीक है। प्लांट की कोई एक डिजीज है या स्किन की कोई एक डिजीज है, आपने तो उसको विजुलाइज करना है और उसको ट्रेन करना है और देखना है। ऑल्दो दोनों के सिम्टम, सिनेरियो, इफेक्ट्स डिफरेंट है। ह्यूमन के लिए डिफरेंट है, प्लांट के लिए डिफरेंट है। ह्यूमन के लिए सबसे मेन चीज़ जो ह्यूमन लाइफ है, आपने टाइमली उसको सेव करना होता है। अब प्लांट्स में ये है कि अगर आप टाइमली प्लांट को नहीं देखते तो वो पूरी की पूरी फील्ड में फैल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैटलैब आप फॉरेंसिक्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं? जो सबसे कॉमन चीज फॉरेंसिक में यूज होती है, सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक मैचिंग, जिसमें फेस, फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से है। अब मैटलैब ना आपको प्रोवाइड करता है डेटाबेसिस के साथ फ्रॉडरी डिटेक्शन, इमेज फॉरेंसिक, कंपोनेंट फॉरेंसिक, आइडेंटिफाइंग एंड प्री फिल्टरिंग इमेजेस। अच्छा, क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कोड है WHX, ठीक है, और मैंने ना इस कोड को डीकोड करना है और मैंने इंफॉर्मेशन गेट करनी है कि इसके पीछे क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और इसके पीछे लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हेलो। अब था क्या, मेरे पास इनपुट पर एक कोड था और मैंने उसको डीकोड करना है। इसका मतलब ये है कि मैटलैब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इमेजेस को डीकोड भी कर सकें, डिकोड कर सकते हैं आप, इमेजेस को इनकोड भी कर सकते हैं, आप खुद भी इंफॉर्मेशन इनकोड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे पहले जो हमने बात की थी जब फार्मर्स की थी, तो मैटलैब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डिज़ाइन AI मॉडल्स, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड हो, जिसमें आप मॉडल्स को ट्रेन करें, डीप लर्निंग हो और डाटा साइंस हो। डीप लर्निंग क्या है, आप डाटा की प्रिपरेशन करें, डिज़ाइन, सिमुलेशन करें आप, और डाटा साइंस क्या है बेसिकली, जिसमें आप एनालिसिस कर सकें, आपके पास डाटा है और आप उस डाटा को विजुअलाइज करें, एनालिसिस करें, ठीक है। कल में इतनी एप्लीकेशंस बहुत हैं, 4-5। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर हैं किसी के, तो यू आर वेलकम, ठीक है। ओके मैम, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन सिंपली राइज योर हैंड और मैं आपके क्वेश्चन, आपका नाम कॉल करूंगा, आप अपने क्वेश्चन जो मैम के सामने रख सकते हैं। सिंपली आप जो है अपने हैंड रेज करें, ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे, और अगर किसी को प्रॉब्लम है माइक पे आने पे तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपका वो रीड कर दूंगा मैम के लिए। अच्छा, ये ओके, वही है मोहम्मद साद सात बिन बिन, हाँ अरे जी। मैम हम ज़्यादातर जो बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं, वो जी सॉल्ट एंड पेपर का करते हैं ना। नहीं, देखो जरूरी नहीं है सॉल्ट एंड पेपर का करो। अगर इमेज में नॉइस ऐसी है, जैसा वो जो मैंने कॉइन्स वाला इमेज दिखाया था जिसमें डॉट डॉट थे छोटे छोटे से, याद है ना आपको, वो जो नॉइस था ना वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइस था, उसको रिमूव करने के लिए मैंने एक मीडियन फिल्टर लगाया है। जरूरी नहीं आपके पास इमेज में हमेशा सॉल्ट एंड पेपर का ही नॉइस हो, आपके पास सम टाइम इमेज में कोई और भी नॉइस हो सकता है, ठीक है। आपका ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि कौन सा नॉइस है। अगर एक ऐसा भी सिनेरियो, लेट्स सपोज इमेज बहुत ज्यादा वाइट है, वाइट सा इमेज है, उसमें इंफॉर्मेशन सही गेट नहीं हो रही, तो अब उसमें सॉल्ट एंड पेपर तो नहीं करोगे ना, फिर उसमें आप देखोगे कि आपका इमेज का ये वाइटिश पार्ट किस तरह से खत्म होगा।
फिर आप प्री प्रोसेसिंग इस तरह से करोगे इनहेंसमेंट कि इमेज में वाइट चीज खत्म हो जाए और इमेज का ओरिजिनल कलर आ जाए। आपको समझ आ गई मेरी बात? जी मैम आ गई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ये एक और बच्चा है 134। हाँ जी, मोहम्मद आसिम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम थैंक जी यू बच्चे। सबसे पहले कि आपने हमें अपना वक्त दिया और फजील भाई कि आपने ये वेबिनार को ऑर्गेनाइज़ किया। मैम मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी कोई फ़ोटो आएगी हमारे पास तो उसको हमने स्केलिंग करना है या उसको ब्लर करना है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन थी जो हमें चाहिए? सपोज़ करें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि ब्लर होने से वो जो हमारा जो उसका फीचर था वो हमसे लॉस्ट हो गया। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन है? और एक और क्वेश्चन ये कि जैसे आपने ये कहा कि हम जो है फार्मिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब हम उसकी मुख्तलिफ फ़ोटोज़ लेते हैं औकात में। तो मैम कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें एरर्स आएंगे, मतलब हवा से कोई जो था एक हमारा पौधा वो आगे पीछे हो गया, या मतलब उसकी जो लोकेशन थी वो चेंज होगी एरे में, तो उसके केस में क्या होगी? ऐसी एक्सेप्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मैटलैब है वो इक्वल टिक्वल होती है, तो वो तो उसको बोले कि ये इसकी इक्वल नहीं है, क्या पता वो उसी को ही एक प्रॉब्लम बना के दे दे। ठीक है, सही है। चलो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। सबसे पहला आपने पूछा था कि लेट सपोज हमने एक इमेज लिया है और उस इमेज पे फिल्टरिंग की है और असल वाली इंफॉर्मेशन भी चली गई है, फीचर भी। ठीक है, अब देखो वाकई बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा आप ये एज्यूम कर लो 98% होता है। देखो हम एक सिस्टम्स बना रहे हैं ना, जब मेरे पास एक इमेज आया है और मैं उसमें प्रोसेस कर रही हूँ तो समटाइम मेरी उस इमेज में से असल इंफॉर्मेशन भी चली जाती है। अब होता क्या है, जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई टेक्निक अप्लाई करते हो ना मैटलैब में, ये एक रूल याद रखो, मैटलैब क्या किसी और लैंग्वेज में भी, तो आप अपना ओरिजिनल डाटा हर स्टेप पर सेव करते जाते हो। अगर तो आपने कोई ऐसा फिल्टर लगाया है जिस फिल्टर से इमेज भी की इंफॉर्मेशन भी खत्म होगी, इसका मतलब ये कि वो इंफॉर्मेशन, वो फिल्टर सूटेबल नहीं था आपके इमेज के लिए। अभी देखो जो मैंने आपको चीजें बताई है ना सारी, वो एक ओवरव्यू है। जब आप इमेज प्रोसेसिंग का लेट्स सपोज कोर्स पढ़ते हो या टेक्निक्स पढ़ते हो, तो उसमें ना आपको बताया जाता है कि कौन सा फिल्टर आपने किस सिनेरियो में यूज करना है। अब ये नॉलेज होगा तो तभी आप यूज कर सकते हो। मतलब ये है मेरा कि मेरे पास एक इमेज था कैंसर का, ठीक है, और मैं आपको एक मिनट स्लाइड से दिखा, बल्कि वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास एक इमेज था कैंसर का, ठीक है, ह्यूमन कैंसर का, स्किन कैंसर का, और ना उसमें ना थोड़े थोड़े से बाल भी थे, सिंस हमारी स्किन पर बाल है ना, ठीक है, अब हमारी स्किन पर बाल भी हैं। अब मैंने ना क्या करना है, मैंने इमेज को पहले प्री प्रोसेस करना है, ठीक है। जब मैंने इमेज को प्री प्रोसेस किया, और प्री प्रोसेसिंग का करने का मेरा मकसद क्या है कि जो अनवांटेड हेयर है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये खत्म होंगे तो देखो बाल के साथ आपकी स्किन भी तो जुड़ी हुई है ना, ये तो नहीं है ना ये अलग से लगे हुए हैं कहीं। जी मैम। तो क्या होगा कि इमेज की इंफॉर्मेशन भी समटाइम लॉस हो जाएगी पीछे से। इसका मतलब ये है कि मैंने इस तरह से रिमूव करने हैं हेयर्स कि मेरा बैकग्राउंड का नॉलेज ना रहे। और मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, ना कि मैंने इमेज को रिमूव करना है। बात समझ आई कि ऑब्जेक्ट की प्रोसेसिंग डिफरेंट है। एक इमेज में जब आप एज्यूम कर लेते हैं ना ये कॉर्नर वाली चीज आपकी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, बजाय इसकी कि आप पूरे इमेज को प्रोसेस करने बैठ जाओ। सबसे पहले आपने इमेज में आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपने कही थी फार्मर्स वाली के प्लांट वाली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैंने ये वाला जी प्रोजेक्ट करवाया हुआ एग्रीकल्चर वाला। इसमें होता क्या है, लेट सपोज स्टूडेंट्स ने खानपुर डैम से, ये जो माल्टों वाले बाग हैं, वहां से जाकर इमेजेस लिए। अब क्या हो रहा था, ठीक। उन्होंने इमेजेस लिए हैं तो हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। इसका मतलब ये कि जो आपने इमेज लिया है वो इमेज फॉर एग्जांपल रोटेट हुआ था, बिल्कुल एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, ठीक है। बारिश हो रही थी तो इसका मतलब है बारिश के उस पे ड्रॉप्स भी पड़े हुए थे इमेज पे। अब ये क्या है, मैं जब इमेज पे एल्गो लगाने से पहले मैंने उस इमेज को ठीक किया था। किस तरह से ठीक किया था, मैंने एल्गो लगाया था कि भाई जहां जहां इसमें ये वाले डॉट्स आए पानी के, पहले उसको फिल्टर करो, उसको हटाओ।
अगर इमेज बिल्कुल रोटेट हुआ हुआ है और कर्व हुआ हुआ है तो इमेज को आप सही करें और उसके बाद एल्गो लगाएं। खाली प्रोसेसिंग करना काम नहीं होता है, ये जो प्री प्रोसेसिंग होती है ना, आप ये कह लें इमेज प्रोसेसिंग में होती सबसे मेन काम प्री प्रोसेसिंग है। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। सही। आप लोग जी, मैं सिंस, समझा। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? If you guys have any question, आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड करने बस काइंडली अपना। ओके मैम, आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की। और ये स्लाइड्स जो हैं ये मैं ऐसा करती हूँ फजील को ईमेल कर दूंगी, ठीक है, ताकि किसी बच्चे ने स्लाइड्स में से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई नॉलेज लेना है तो वो उसको ले ले, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग या मैटलैब में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ईमेल एड्रेस भी अपना फजील को दे देती हूँ, आप लोग मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू सो मच। गाइस, मैं आपके साथ एक रिस्पांस फॉर्म शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, काइंडली आप उसको फिल कर लीजिएगा और उसके थ्रू आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू योर ईमेल्स। मैं शेयर कर रहा हूँ। चैट चैट ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप मैम आप लीव कर सकती हैं। बाकी जो है वो काइंडली आप मीटिंग में रहें, आपके साथ रिस्पांस फॉर्म फिल शेयर कर रहा हूँ, आपने उसको ज़रूर फिल करना है फॉर योर डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अब आ जाता है आपके पास। चैट बॉक्स में रिस्पांस फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया गया है, काइंडली आप वहाँ से चेकआउट कर लें और हमारे पेज का लिंक भी वहाँ पे गिवन है। और फॉर द फ्यूचर इवेंट आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ।
आई होप एवरीवन गॉट द फॉर्म। अगर जिसको फॉर्म नहीं मिला काइंडली वो बताएं, अगर एक्सेस नहीं हो रही फॉर्म की उन्हें तो। हेलो जी, नेम नेम फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या लिखिए इसमें? ये सेमिनार का आप नेम लिखिए। आप अपना नेम लिखें। ठीक है। मैंने दोबारा से शेयर कर दिया फॉर्म जिनको नहीं मिल रहा था। आप चैट बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके तैयबा, अगर आपको फॉर्म यहाँ विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा थ्रू योर ईमेल। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। फजी आप ऑनर हैं, आप अटेंडेंस ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकती। तो आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड का साइन आएगा, वहाँ से आप सारे अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके मैम।
ओके मैम, अटेंडेंस इनकी ले ली है मैंने। ओके गुड, जबरदस्त। मैंने आपको कुछ मैसेज कर दिए हैं, वो आप पढ़ लीजिए।